Yes, good evening all. Am I audible? Hello, am I audible? Usha and Ganesh, am I audible to you? Good evening, sir. Yes, good evening. Yes, am I audible to you? Yes, sir. Okay, okay, good. Okay, please wait for 2 minutes. Let all join. Okay, we should start now. So please turn on the camera. Ganesh, Usha, and who is Zoom user? Please turn on the camera. Yes. Please rename yourself. I So think. Anshul Chauhan. Yes, Anshul. Yes. Yeah. Good. Yeah. Good. Okay. Okay, so today we are going to start our second session, and it is also belonging to introduction about the polymer chemistry. Okay, so I will take class Monday to Friday, I think. Okay, Saturday I will not take class. So 5 classes in week I will take. Okay, and these are the rules which are mentioned here. Be on time, be prepared, means you have to carry a notebook and pen, pencil, whatever. Your camera should be on. Do not eat while the class. Dress appropriately. And while discussion, please keep your mouth muted. And you can raise your hand if you have any query and enjoy the learning. So in last class, we discussed about the polymers and about the basic things about the polymer. Okay. And I gave also one exercise to you. Am I right? एक एक्सरसाइज दिया था ना मैंने, तो वो किया क्या आप लोगों ने किया वो एक्सरसाइज? चलो ठीक है, मैं रिवाइज करता हूँ एक बार। ये पॉलीमर के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या पॉलीमर होता है, मोनोमर से वो बनता है। तो इसको दिस इज ओनली वी हैव व्हाट इज द homopolymers means if all monomer units are same, then it is called as a homopolymer. And if we make polymer by two or more than two different type of monomers, then it is called as a copolymer. And then we discuss about the how we can make what are the reactions name,
to make a polymerization. So first of all, we have discussed addition polymerization, and here I stop. Okay, in this slide. So I gave a very simple exercise. So suppose there are 5 ethylene molecules, and you are going to make this polymer. So what are the possible structures? So for that, I will just discuss this thing. Okay, I will discuss this in end of the class. Okay. Then condenses. Okay, so today we are going to discuss about the second reaction of the polymerization, which is condensation polymer. Okay, or you can say condensation reaction. So what is the meaning of condensation reaction? Anyone? Any idea? Any idea about the condensation reaction? कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? कुछ पता है आपको इसके बारे में? कंडेंसेशन मीन्स कोई चीज कंडेंसेट हो रही है, इसका क्या मतलब होगा? ओके, कंडेंसेशन मीन्स मतलब कंडेंसेशन हम यूज करते हैं कि जब कुछ कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना, तो मोनोमर रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म बाय प्रोडक्ट विथ पॉलीमर. ओके, सो what but why we gave this name condensation reaction? So let me give an example. See, please keep writing also. Okay, so there are two type of different type of monomer. First is hexadioic acid, and second is ethanediol. Okay, so this is the first monomer, and this is the second monomer. Okay, now they are reacting together and forming a polymer. So what is happening here? This OH group of the first monomer is going to react with H group of second monomer. Okay, we can say, and what they are doing, they are just making water. Okay, they are just making water. Water is, what is the chemical formula of water? H2O. Okay, so OH is coming from the first monomer, and this H is coming from the second monomer. Finally, you are getting this water. Okay, but due to removing of this OH from the first monomer and H from the second monomer, they are making this link. Okay, and this link is known as a ester link. Okay, तो दो चेन है, दो चेन मतलब दिस इज द फर्स्ट चेन, ठीक है, और दिस इज द सेकेंड चेन. फर्स्ट चेन का एंड ये है और सेकेंड चेन का एंड ये है. तो क्या हो रहा है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों एंड मतलब चेन के ये रिएक्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्ट करने के बाद एक चेन बना रहे हैं, लंबी चेन, लाइक दैट. ओके, इससे ये चेन बन रही है. लेकिन जो इसके लास्ट में जो ग्रुप है वो क्या है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये ग्रुप होगा OH, और यहाँ पे वो ग्रुप होगा H. ठीक है, तो H और OH ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और ये बना देंगे पानी. ठीक है, so they will create water and this chain will be linked and make a longer polymer chain. Okay, so इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. Okay, so मतलब the product of this reaction is called as a condensation polymer. Okay, and this reaction is called as a condensation reaction. Clear? ये समझ में आया कैसे हुआ ये? हेलो अंशुल, गणेश, ये समझ में आया क्या आपको? सर थोड़ा थोड़ा. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आया ना, मतलब कहाँ समझ में नहीं आ रही है मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस. सर वो जब आप बोल रहे थे तब फोन आने लगे थे, इसीलिए सुन ही नहीं पाया मैं. अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. फोन अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, है ना.
तो जी इसमें जी वो काट हाँ दिया सर, हाँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट वाला मोनोमर दिख रहा है। पॉलीमर कैसे बनता है? पॉलीमर, जी मोनोमर कनेक्ट होंगे तभी पॉलीमर बनेगा ना। ठीक है। जी तो एक ये फर्स्ट मोनोमर ये है और सेकंड मोनोमर ये है। ठीक है। ये दोनों कनेक्ट होंगे तो ये दो मोनो मतलब एक छोटा सा पॉलीमर बनेगा, दो मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो ये फर्स्ट मोनोमर ये है, इसका नाम है हेक्सा जी। डायोइक एसिड। ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे, हेक्सा डायोइक एसिड मीन्स, हेक्सा मीन्स यहाँ पे सिक्स। छः छः कार्बन होंगे। हाँ, हेक्सा मीन्स छः। जी। तो हाँ काउंट कर सकते छः, हैं, देखो एक दो तीन चार, चार, पाँच। है ना, तो छः है। और जी तो सर। ये हेक्स का मतलब समझ में आ गया। फिर डाइओइक, डाइओइक मीन्स यहाँ पे दो ग्रुप है इसमें। तो कहाँ पे दो ग्रुप है? पहला ग्रुप तो ये देखो COH, और दूसरा और ग्रुप दूसरा। ये। ठीक है ना। तो जी इसका नाम समझ में आ गया जी ना, सर। क्यों इसका नाम क्यों हेक्साडाइगोनल एसिड है। ठीक है। हाँ। तो ये फर्स्ट मोनोमर हो गया। सेकंड है अपना इथेन डायोल, अगेन इथेन। तो मीथेन, डायोल। हाँ देखो मीथेन मतलब एक होता है और इथेन मतलब दो होता है। तो यहाँ पे दो कार्बन तो होने चाहिए, होता है ना, तो दो कार्बन है, एक और दो। ठीक है। फिर डाईओल, तो ओल मतलब OH ग्रुप, और दो OH ग्रुप होने चाहिए, तो ये भी सही है, दो OH ग्रुप है। OH ग्रुप। जी फिर। ठीक है। ठीक है, तो मोनोमर समझ में आ गया अपने को क्या है। अब क्या है कि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। ओके। तो ये रिएक्शन कर रहे हैं, जी तो रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, जो कि लाल लाल कलर में दिख रहा है ना। OH यहाँ से निकल रहा है जी। और H यहाँ से निकल रहा है। तो ये दोनों निकल के पानी निकल गया यहाँ पे बाहर। ठीक है। और हम्म। ये दोनों मोनोमर कनेक्ट हो गए, मतलब ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए और एक छोटा पॉलीमर बन गया। तो इसको बोलते हैं अपन कंडेंसेट पॉलीमर, क्योंकि पानी बन रहा है इसमें। ठीक है। तो पानी ये बन रहा है, रिएक्शन, ठीक। हाँ तो ये रिएक्शन कंडेंसेशन पॉलीमर्स प्रोडक्ट, ये जो है ये कहलाएगा कंडेंसेट पॉलीमर। और जो रिएक्शन है वो कहलाएगी कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये पॉलीमर बनाने की एक रिएक्शन है। तो हमने अभी तक दो रिएक्शन पढ़ ली। फर्स्ट वाली कौन सी थी? फर्स्ट वाली उषा कौन सी थी? उषा, आर यू देयर? उषा। यस सर। हाँ, फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी थी? एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने, एडिशन, जिसमें कि मोनोमर सिर्फ ऐड हो रहे थे। ठीक है। तो यस यहाँ, सर। हाँ तो यहाँ पे ये कंडेंसेशन से लिंक बन रहा है। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते जी जी हैं। सर कर ली। कर ली? अच्छा, गणेश आपने भी कर ली? जी सर। अच्छा ठीक। तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन कंडेंसेशन। रिएक्शन। हाँ, और इसके एग्जाम्पल है नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। नाइलॉन पॉलिश। हाँ जी पॉलिस्टर। सर। हाँ हाँ ठीक। चलो। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके। सो कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होगा कि उसकी उसके गुण, ओके, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो ये द मॉलिक्यूल शुड हैव वन और टू फंक्शनल ग्रुप। ओके। इसका क्या मीनिंग हुआ? अ मॉलिक्यूल शुड हैव वन और टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? पहला फंक्शनल ग्रुप मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो रिएक्ट करेगा, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। रिएक्शन करने वाला, हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें जो ये वाली अपनी प्रीवियस स्लाइड थी, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसी से मतलब ये जो अपना मोनोमर है, ये यहाँ से रिएक्शन करेगा और यहाँ से रिएक्शन करेगा। मतलब ये एक्टिव साइट बोल सकते हैं, ये एक्टिव साइट है, यहीं से रिएक्शन होगा, है ना। और इसका कौन सा है सेकंड मोनोमर का? ये वाला और ये वाला, और ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ गुड। ठीक है। तो ये इधर COOH है, तो ये इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप। ठीक है ना, ये एसिड, ये कहलाता है आपका एसिड, एसिड ग्रुप। और ये कौन सा है? ये एल्कोहल, ये एल्कोहल के लिए, तो इसको ये एल्कोहल ग्रुप है। और इसको सिंपल मतलब अगर लिखना है तो अपन ओल लिखते हैं, OL। ठीक है ना, किसी भी, जैसे इथेन है, ठीक है, इथेन, इथेन तो क्या होता है? अगर इथेन को लिखेंगे सिंपल स्ट्रक्चर, तो ये इथेन होता है, CH3 दो कार्बन एटम है और ये हाइड्रोजन से अटैच। ये हो गया CS इथेन। लेकिन
जब इसमें OH ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा इथेन ओल। और अगर दो ग्रुप जुड़ेंगे तो इथेन डाइओल हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन में से मैं एक एक हाइड्रोजन उड़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हो गए 2 हाइड्रोजन। ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसलिए ये सब चीजें मैं इसीलिए मैं मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ाना है। तो यहाँ से कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब इसके 4 हाथ होते हैं। अगर वैलेंसी समझ में नहीं आ रहा है तो यूं समझ सकते हो, इसके 4 हाथ होते हैं। मतलब जैसे कि आज मैं हूँ, तो मेरे 2 हाथ है, तो मैं 2 हाथ से किन्हीं दो दूसरे लोगों को पकड़ सकता हूँ, है राइट। लेकिन कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो ये 4 जनों को पकड़ सकता है। ठीक है। तो 4 हाथ 4 जनों को कैसे पकड़ेगा, देखो, एक यहाँ से पकड़ा इसने हाइड्रोजन को, एक यहाँ से पकड़ा, एक यहाँ से पकड़ा और एक यहाँ से। क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो इसके 4 हाथ हैं, मतलब कार्बन के, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल। ठीक है। तो अगर 4 हाथ इसके, मतलब ये चारों हाथों से पकड़ लिया, मतलब ये सेचुरेटेड है, मतलब अब ये और किसी से बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्लियर? हम्म। हाँ ठीक है। तो ये CH4, मतलब इसके 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ से बॉन्ड बनाता है। लेकिन अब आते हैं अपन अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे। मैं कह रहा हूं कि सपोज आपका इथेन है, इथेन में कितने कार्बन हो, 2 कार्बन। ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक सॉरी, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा। ठीक है, सेम हियर, यहाँ भी 3 जुड़े हैं। ठीक है। तो यह कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, कैसे पता चल, जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसमें हो रही है नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा? हो रही है या नहीं हो रही, मतलब आप दोनों आंसर दे सकते हैं। सिंपल चीज है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्लास में बोलिए, गलत सही की चिंता मत करिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो यू कैन स्पीक। ठीक है ना? हो रही है या नहीं हो रही, यस और नो? तो हो रही है। हो रही है। क्योंकि गुड। कार्बन की चार होती है सर। सॉरी। चार, तो कार्बन की हाँ अगर वैलेंसी होती है वो 4 होती है। हाँ, 4 होती है, तो चारों बॉन्ड बना रहा है ना, देखो अपन काउंट करते हैं आराम से, चारों कोई। बॉन्ड बना रहा है। या अच्छा। देखो, हाँ, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तीसरा बॉन्ड यहाँ बना रहा है, और चौथा बॉन्ड यहाँ बना रहा है। ये बना रहा, जी जी ठीक है। सर। हाँ, अब सेम अपने दूसरे बिल्कुल। कार्बन को भी सेम ही चीज है, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा ये। ठीक है, ये सेम वाला, ये दोनों का कॉमन है, तो ये 2 बार काउंट होगा, है ना? तो दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है इसमें। क्लियर? ठीक ठीक। है। यस सर। हाँ, ये हो गया अपना इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन में हटा रहा हूँ इसमें से। ठीक है। तो मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूँ। तो अब इसकी वैलेंसी मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई। अब ये कार्बन एक बॉन्ड और बना सकता है। सही है। हाँ तो सर। हाँ, तो मैं इसको किसी और से जोड़ रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, ये देखिए, एक बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, OH। मैंने H को हटा के यहाँ पे OH लिख दिया, और ओएच। यहाँ भी मैंने H को हटा के OH लिख दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप देखोगे तो वापस वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गई, है ना? लेकिन हाँ सर। हाँ, मैंने मॉलिक्यूल दूसरा लगा, मैंने दूसरा ग्रुप लगा दिया, और ये ग्रुप वो रिएक्टिव ग्रुप। होता है, तो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, OH। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम्म। दो दो ग्रुप लग गए OH के, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ये भी OH और ये भी OH। क्लियर? तो ये कहलाता है आपके फंक्शनल ग्रुप, जो रिएक्शन करते हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन से पहले OH रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब एक क्लास में 5 बच्चे हैं, तो पांचों बच्चे हम्म। एक जैसे रिएक्ट नहीं करते ना, कोई ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है ना? तो सबसे मतलब अपन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किसको समझेंगे, जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है राइट? तो ठीक। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में OH सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है उसको अपन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
ठीक है, हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ये दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप ही है, बट ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसका नामकरण करो, क्या नामकरण होगा इसका? ओके, मीन्स आई एम गोइंग टू टीच यू nomenclature with this concept. What is the name of this compound? Can you guess? F2 diol। हाँ देखो, सबसे सिंपल, सबसे पहले कार्बन को काउंट करना है, तो कितने कार्बन है? दो। तो इथेन और मीथेन, सॉरी, मीथेन और इथेन, तो ये इथेन होगा। ठीक है, तो देखो इथेन यहाँ लिखा हुआ है, ये इथेन हो गया। फिर दो ठीक है। दो OH ग्रुप है, ठीक है, तो डाई आएगा, डाई। और मैंने बोला है ना कि ऑयल के मतलब OH ग्रुप के लिए ऑयल आता है, तो डाई ऑल। तो ओएल, इथेन डाई ऑल, इसका नामकरण क्या हो गया? इथेन डाई। मिथेन डाइऑक्साइड। हाँ, इथेन डाई ऑल हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया बिल्कुल, कोई दिक्कत? ओके सर। हाँ कैसे? हाँ, एक एक मिनट है ना, एक मिनट, जस्ट मिनट, मेरा ये बैटरी कम हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कैसे इसको यस। ओके, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, और इस मॉलिक्यूल से, और इसका भी ऐसे ही होगा। हेक्सेन डाइऑल तो 6 कार्बन है, और उसमें OH ग्रुप जुड़े हैं दो, इसलिए हेक्सेन और ओइक एसिड। ठीक है, जब एसिड होता है तो उसका सफिक्स ओइक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ OL होता है, और यहाँ क्या होगा? ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। ठीक है, ये एसिड के लिए यूज होता है जनरली। और ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ठीक है ना, तो ये हमको समझ में आया है यहाँ तक। ओके, so the molecule should have two functional group like alcohol, amine and carboxylic acid. Okay, तो सपोज ये कोई चेन है, तो इसके एंड में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। सही है ना? अगर कुछ होगा ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे करेगा? मतलब कुछ तो ग्रुप होना चाहिए ना। ओके, सम ग्रुप शुड बी देयर, ओके, व्हिच कैन रिएक्ट एंड मेक पॉलीमर चेन। ओके ओके, तो दो, सपोज दो चेन रिएक्ट कर रही है, तो दोनों में कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ओके, सो फाइनली दे विल रिएक्ट एंड दे विल प्रोडक्ट लाइक दैट। ये येलो चेन हो गई, और ये पिंक चेन हो गई, ये दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप से। और ये फंक्शनल ग्रुप, सपोज ये H है, ये OH है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप बना देंगे पानी। ओके, वाटर। सो दिस इज द टोटल रिएक्शन। Two different type of monomer are getting reacted by their functional group, and they are making polymer plus water. ओके, तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? द मॉलिक्यूल शुड हैव वन और टू फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल, एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, ये समझ में आया है ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट? यस सर। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करता हूँ। सबको क्लियर है? गणेश, अंकित, ये क्लियर है ना? यस सर। ओके,
सेकेंड पॉइंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर, अभी ओके ओके गुड। ओके, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि लिखते जाइए आप साथ में, है ना, नोट्स बनाते जाइए साथ में। द रिएक्शन अकर बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ, ठीक है, द रिएक्शन अकर बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, it can take place between a dimer or oligomer, one monomer and one dimer, or different chain in another chain of polymer. ठीक, the what is the meaning of this sentence is uh, दो सिमिलर टाइप के मोनोमर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले भी बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल एक मिनट अपन लेंगे। Just a minute, let me share whiteboard. Now it's good enough. Okay, so what happening here? मैं एक चेन बना रहा हूँ, ये कोई चेन है कार्बन की, ठीक है, इसका OH है, ठीक है, और 1 2 3, ओके, ये दो चेन है, ये रिएक्शन कर सकती है आपस में, कर सकती है या नहीं कर सकती? तो कर सकती है। यस कर सर, सकती, कर कर सकती है। सकती है, यस यस। तो करेगी तो क्या बनेगा? देखो सपोज यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, इन दोनों ने रिएक्शन किया, ठीक है, तो पानी बाहर आ गया, ठीक है, H2O, और ये दोनों चेन जुड़ गई, तो चेन जुड़ गई तो क्या बन गया इसका, कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा 2 3, देन O विल बी देयर ओनली, ओके, अगेन 2, यस या, सो दिस इज द प्रोडक्ट। फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो समझ में आया ना कि सेम, ये दोनों चेन सेम है, तो सेम टाइप ऑफ पॉलीमर कैन रिएक्ट, ओके, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ओके। सेकंड, अगर सपोज ये चलो ये नोट करते रहना है ना साथ में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जी अगर दोनों चेन सेम है, सपोज ये नहीं है, कुछ दूसरा है, तो कैसा होगा? तो मैं यहाँ पर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड सेकंड एग्जांपल में क्या है कि आपका चेन है, जो एग्जांपल जस्ट अपन ने अभी पिछली बार लिया था, सी, आप साथ में बनाते जाइए प्रोडक्ट, इससे क्या थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी, हाथ से करोगे ना तो ही समझ में आएगी। जी जी सपोज, सर। हाँ, तो ये दो चेन है, अब चेन अलग अलग है, फर्स्ट चेन अलग है, सेकंड सेकंड, या ये बोल सकते हैं बोथ मोनोमर्स आर डिफरेंट, दिस इज द फर्स्ट मोनोमर एंड दिस इज द सेकंड मोनोमर, ओके, ठीक है। डिफरेंट। हाँ, अब ये रिएक्शन कर रही है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपकी कॉपी में बनाइए। अगर ये दो चेन, करेगी तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर इसको बना के देखिए। बन रहा है उधर? ऑक्जेलिक ग्रुप। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आपका नाम, आपको प्लीज आपका रीनेम कर दीजिए, क्योंकि 5 VB, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु आर यू, 5 VBRGN, आपका नाम रीनेम करने से मुझे पता रहेगा कि कौन हो आप, है ना। यस, और आप कैमरे भी ऑन कर, अगर करना चाहो तो अच्छी बात है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप?
ऑक्जेलिक ग्रुप बनाएगा COO के साथ। ऑक्जेलिक ग्रुप, ये देखो मैं बनाता हूँ। हाँ, यहाँ से H2O निकलेगा सर, यस यस, हाँ तो COO ये बोल रहे हो ना आप? जो है वो ऑक्जेलिक ग्रुप में रहेगा। यस, मतलब ग्रुप बनेगा ये वाला, एक मिनट, हाँ, CO। COO। हाँ, बाकी की ये चेन अपन ऐसे बना देते हैं। और अदर, हाँ हाँ ठीक है, सेकेंड अपन दूसरा कलर लेते हैं इस वाला, और इसमें रहेगा, इसका ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। जी, और ऑक्सीजन रहेगा। हाँ, और बाकी की चेन ये हो गई। तो ये यस, हाँ, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक ग्रुप है ना सर? ये एस्टर ग्रुप है। ईस्टर और हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ईस्टर ग्रुप, राइट हाँ, है राइट। ना, हाँ हाँ, ईस्टर ग्रुप। तो ईस्टर ग्रुप बना, ठीक है। तो यस। हाँ ये हाँ, सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि आइदर सेम और डिफरेंट मोनोमर कैन मेक कंडेंसेट पॉलीमर, ठीक है ना। कंडेंसेट पॉलीमर दो डिफरेंट मोनोमर से भी बन सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब ये है, सॉरी जस्ट, हाँ, अभी ये इसमें जहां तक अभी तक पढ़ा हमने, तो हम पढ़ रहे हैं कि एक साइड में फंक्शनल ग्रुप है। सपोज एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी है, अगर इस चेन में एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी है, पीछे है, तो क्या हो सकता है, ये यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है किसी और चेन से, लाइक डेट, हो सकता है ना। यस हाँ, तो यस मतलब ये, यस तो इस टाइप से चेन इधर भी बढ़ सकती है। और अगर फंक्शनल यस। ग्रुप, हाँ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है CO, अगर सपोज यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है एक और, ठीक है, तो ये चेन इस साइड भी बढ़ सकती है, लाइक दैट। तो दोनों तरफ चेन बढ़ सकती है, तो मतलब ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है, बन सकता है ना, है ना। यस तो यस हाँ, यस तो मतलब कि जरूरी नहीं कि दो मोनोमर ही रिएक्शन करे, मतलब एक बड़ी चेन भी मोनोमर से रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। तो मतलब ये चेन दोनों तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये चेन रिएक्शन करेगी तो मोनोमर से करेगी ना। तो मतलब यस। हाँ, तो बड़ी चेन और बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे ही दो छोटी छोटी चेन अगर रिएक्ट करेगी तो भी बड़ी चेन बन सकती है, तो वहां बहुत सी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। बट व्हाट इज द मेन मोटिव इज योर फंक्शनल ग्रुप शुड बी देयर। अगर फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये ओके बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है तो रिएक्शन जल्दी होगी, अगर वीक फंक्शनल ग्रुप है तो रिएक्शन धीरे होगी, सीधी बात है ना। मतलब अगर बंदा ज्यादा एक्टिव है तो वो ज्यादा जल्दी काम करेगा, वही चीज यहाँ पे है। अगर आपका हम्म, फंक्शनल स्ट्रॉन्ग है तो वो रिएक्शन अच्छी करेगा, जल्दी चेन बनाएगा, लंबी चेन बनाएगा, ठीक है। अदरवाइज यस। उसकी रिएक्शन थोड़ी धीरे होगी। तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर मीटिंग बंद हो जाती है तो आप है ना, वापस इसी मीटिंग, इसी लिंक को ज्वाइन करेगा, है ना। ये रिकरिंग ओके सर। लिंक है, वापस आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 घंटे की क्लास सर, होगी, हाँ हाँ, यस। सर मेरी कुछ क्वेरी थी। हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली ये मतलब सर हमारा ये ऑफिस आवर होता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अगर सर 1 घंटे मतलब और डिले अगर हुआ तो डिले करना कैन बी चाहिए। पॉसिबल? नहीं नहीं, आप सब बात कर लीजिए, हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ओके ओके हाँ, ओके आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए। आपके हिसाब से ओके सेट करिए कोई भी टाइम, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, मैं फ्री हूँ, ठीक है। ओके 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 हाँ हाँ, ठीक ओके है। तो ये ओके हो सर। गई, ठीक है। और सर अभी मंडे टू सैटरडे मतलब कंटिन्यू रहेगा क्लास? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे नहीं लूंगा मैं, सैटरडे तो काम रहता है हाँ। मेरे को, तो मंडे टू फ्राइडे है ना। अच्छा, इसमें सर फ्राइडे सैटरडे दिया गया था इसलिए पूछा। हाँ हाँ, इसमें वो सुबह बात हुई थी विक्रम जी से, तो जी जी वो उन्होंने बोला था सैटरडे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 5 क्लास सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जी जी जी। है ना। तो ठीक है, 5 क्लास सफिशिएंट है ना। ओके ओके सैटरडे संडे थोड़ा ओके। रेस्ट भी करिए, और मेरे को भी करने दीजिए, ठीक है। सर कितने मतलब कैंडिडेट्स हैं कि अपन में आप ग्रुप में डिस्कशन कर सके कि टाइम फिक्सेशन का सर? आप वो तो आपके मतलब कॉलेज में जो भी स्टूडेंट जितने हैं उनसे बात कर लीजिए, एक बार विक्रम जी से बात कर लीजिए, विक्रम जी से एक्चुअली स्टूडेंट से, हाँ। हम तो कॉलेज स्टूडेंट नहीं है सर, एक्चुअली हम अच्छा अच्छा, सर्विस वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली हम फिक्स ट्रांसमिशन ग्रुप में हैं।
नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप विक्रम जी से बात कर सकते हैं ना? ओके सर, हाँ विक्रम सर से कर सकते हैं। हाँ हाँ, बस वो उनको बोलिए, तो वो जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा वो आप डिस्कस करके फाइनल मुझे बता दीजिए, तो मैं उस टाइम ले लूंगा। ओके सर, ओके ओके, ठीक ओके है जी। सर। हाँ, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्या पॉइंट था? द रिएक्शन अकर बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल मोनोमर्स, इट कैन टेक्स प्लेस बिटवीन अ डाइमर और ओलिगोमर, वन मोनोमर, वन डाइमर, और बिटवीन अ चेन एंड अनदर चेन। ओके, तो चेन चेन के साथ रिएक्शन कर सकती है, डाइमर डाइमर का के साथ रिएक्शन कर सकता है, ओलिगोमर ओलिगोमर के साथ रिएक्शन कर सकता है। व्हाट इज द ओलिगोमर? बट आपको पता है ओलिगोमर क्या होता है? पॉलीमर में ओलिगोमर नाम सुना है कभी? नहीं नहीं सुना है? अच्छा, नहीं सर। ठीक है। ओलिगोमर तो ओलिगोमर होता है कि छोटी चेन। ठीक है, एक सिंपल ओ, लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं छोटी चेन। मतलब तो पॉलीमर बन रहा है तो यूं तो नहीं कि एक साथ पॉलीमर बड़ा बड़ा बन जाएगा। पहले छोटी चेन बनेगी ना, छोटी छोटी चेन बनेगी, फिर वो चेन आपस में रिएक्शन करके बड़ी चेन बनेगी। ऐसे ही होगा ना? तो जो छोटी चेन होती है उसको ओलिगोमर बोलता है। ठीक है, सबसे छोटा हुआ आपका मोनोमर। मोनोमर रिएक्शन करके छोटी चेन बनाएगा, उसको बोलते हैं ओलिगोमर। ठीक है, और ओलिगोमर आपस में रिएक्शन करके बहुत बड़ी चेन बना देगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमर, लाइक। ठीक है, क्लियर? पता चला? मोनोमर से ओलिगोमर क्या होता है, ओलिगोमर से पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, दिस टू पॉइंट्स आर क्लियर आई थिंक। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, 2 मिनट बचे हैं, इसके बाद वापस आप लिंक ज्वाइन करेगा तब चलो डिसीजन। स्मॉलर मोलिक्यूल यूजुअली कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मोलिक्यूल। ओके, मींस स्मॉलर मोलिक्यूल कंबाइंड होकर they will form a big chain, a big molecule, giant molecule. This point is very simple. Mixed property of both molecule or functional group are taken into consideration. Okay. So what will happen? Mixed property of both the molecule or functional group are taken into consideration. Okay. तो इसमें क्या होगा कि इनिशियली, अगेन आई एम मूविंग टू दिस स्लाइड, यहाँ पे फर्स्ट मोनोमर आपका एसिड है। ठीक है, और सेकेंड मोनोमर, सेकेंड ये आपका एल्कोहल है। तो जो एसिड होता है वो एसिड ही होता है, ये तो सिंपली पता है। जो ये एल्कोहल है ये होता है बेस, बेसिक इन नेचर। एसिड और बेस पता है ना अपने को? एसिड और बेस क्या होता है? एसिड जो कि, यस यस। हाँ, जो एच ग्रुप देता है, एच प्लस आयन देगा। सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। जो एच प्लस आयन देगा वो हो गया आपका एसिड, जो एच माइनस आयन देगा वो आपका बेस। ठीक है, यस। तो इसमें एक एसिड है, एक बेस है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट और ये दोनों रिएक्शन करके ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एस्टर है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना तो ये एसिड है ना बेस है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है किसी भी कंडेंसेशन रिएक्शन का, उसमें या तो दोनों प्रॉपर्टी होगी, दोनों मॉलिक्यूल की, या फिर अलग ही प्रॉपर्टी होगी। मतलब किसी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब वो अलग ही प्रॉपर्टी बनता है। ये कहना चाह रहा था वो लास्ट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक ठीक। तो एक देन कंडेंसेशन, ओके, ये हो गया। जस्ट लास्ट पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ओके, सो